من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم المحمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم لعن اول ظالم بشمال اللهم لعن اصحاب التي بشمال وتابا على قتله اللهم عنهم جميعا اللهم بعد فقط بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتوهن قال إني جاعلك للناس إماما صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے سورہ بقرہ، یہ قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے. اس کی آیت نمبر 124 ارشاد رب العزت ہوا کہ میرے نبی اس وقت کو یاد کیے کہ جب میں نے ابراہیم کا امتحان لیا اور جب جناب ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے تب قرآن پکارا کہ للناس اماما، اے ابراہیم اب میں نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا. ہمارا ایک سوال ہے عالم اسلام کا. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جشن امام حسن علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. واقعہ یہ ہے کہ یہ قابل تحسین ہے وہ لوگ کہ جو لوگ اس جشن میں کسی بھی طریقے سے شرکت کی لوگوں نے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ امیر ابن امیر کا جشن ہے. واہ واہ بے شک. کریم ابن کریم کا جشن ہے. رحیم ابن رحیم کا جشن. آج دنیا یہ سمجھتی ہے جیسا کہ لوگوں کا مزاج ہے کہ صاحب پیسے کے یعنی پیسے والوں کے پیچھے چلیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت سے بڑا کوئی پیسے والا ہی نہیں. واہ واہ بے شک بے شک. اس کی دلیل کیا ہے؟ ارے میں نے کہا اس کی دلیل سامنے کی بات ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا دیکھیے مولانا یہ جو کھڑے ہیں آپ کے سامنے کرتا پائجامہ پہنے ہوئے، ان کے کم سے کم 25 شہروں میں ان کے ہوٹل ہیں. ایک صاحب اور میرے پاس آئے، انہوں نے کہا مولانا وہ جو وائٹ مطلب شیروانی پہنے کھڑے ہوئے ہیں ان کو آپ نے پہچانا نہیں، ان کے 25 ملکوں میں ہوٹل ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس جتنی بڑی پراپرٹی ہوتی ہے وہ اتنا ہی بڑا امیر کہلاتا ہے. بے شک. ارے بھیا حسین سے بڑا امیر ہی کون سا ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ. کوئی گاؤں، کوئی محلہ، کوئی ملک، کوئی شہر، حد یہ ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں جس میں ایک چھوٹا سا امام باڑہ حسین کا. سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. واہ واہ کہوں کہ لفظ امیری سوائے اہل بیت کے کسی پر جشتہ نہیں ہے. واہ واہ بے شک. ارے ان سے بڑا امیر کون سا ہے؟ زندہ باد. اور کمال تو یہ ہے کہ آج جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت زہرا فدق کے لیے گئی تھی، فدق کے لیے نہیں گئی تھی. فدق کی حیثیت تھی کیا؟ واہ واہ کے پوتے کا دھومن. واہ 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 سبحان اگر یوں ہی مانگ لیتے ادب سے تو مسئلہ یہ ہے کہ دے دیتے. بے شمال بار مولانا یالی ہوتا کیا ہے؟ بے شمال. اس سے بڑا امیر کوئی ہے نہیں کائنات میں.
آج عالم اسلام میں جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ سب کے سب اس پر متفق ہوتے کہ اللہ جس کو منوائے گا ہم اس کو مانیں گے، نبی جس کو منوائیں گے ہم اس کو مان لیں گے، تو اسلام میں 73 فرقے ہی نہ ہوتے۔ یہ دودھ میں پانی ملانے کا تو ہے نتیجہ۔ واہ واہ، کچھ کہا اللہ کچھ کہہ رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب ہم نے امامت کی فضیلت، ان کے فضائل، ان کے مناقب بیان کیے تو انہیں کہا صاحب نبوت، ارے میں نے کہا کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ پورے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ انہیں کہا 6666۔ میں نے کہا کتنے سورے ہیں؟ کہنے کہ 114۔ تو میں نے کہا 114 سوروں میں 6666 آیتوں میں قرآن میں کوئی ایک آیت ہم کو ایسی لا کر دکھائے میری آواز بھی تصویر ضبط ہو رہی ہے، سبحان اللہ، اس سے کوئی پھر نہیں سکتا۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ قرآن کے 114 سوروں میں 6666 آیتوں میں کوئی ایک آیت ہم کو ایسی لا کر دکھائے 1,24,000 نبیوں میں سے کسی ایک نبی کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہو نبی کے لیے کہ ہم نے ہر شے کا ایسا نبوت کے اندر پہنچا مگر امام کے لیے ضرور ہے سورہ یاسین، سبحان اللہ، سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 سبھی کو یاد ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت جناب ابراہیم کا امتحان قدرت نے لیا، ہوتا کیا ہے؟ بشارہ صاحب تشریف فرما ہے، سبحان اللہ، اور ہمارے جو سب کے سب چھوٹے بھائی اللہ ان کو سلامت رکھے اور ہر بلائے رکھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہیں امتحان دیتے ہیں، ایک آدمی نے ہائی اسکول کا امتحان دیا تو ہائی اسکول میں پاس ہو گیا تو کیا وہ 9th میں چلا جائے گا؟ ارے کہاں جائے گا بھائی؟ میں نے کہا صاحب وہ فرسٹ ایئر میں جائے گا۔ ایک آدمی نے فرسٹ ایئر پاس کیا تو کیا وہ ہائی اسکول میں آ جائے گا؟ وہ انٹر میں جائے گا۔ ارے کمال ہے، کہاں بیٹھے؟ آتی لوگوں کا مزاج یہ ہے، گناہگار کا مزاج یہ ہے کہ جو درجہ جو ڈگری پہلے سے موجود ہوتی ہے اگر امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے تو اس سے بڑھ کر اس کو درجہ دیا جاتا ہے۔ اور نہیں فرمایا؟ میرا ایک سوال ہے کہ جب جناب ابراہیم امتحان دے رہے تھے تو ابراہیم کے بعد نبوت کی ڈگری تھی؟ سبحان اللہ، ہائے ہائے، نبوت کی ڈگری تھی، یعنی نبی تھے۔ جب فتح جب ابراہیم نے فتح حاصل کی، کامیاب ہوئے، تب قرآن پکارا کہ للناس امام، اے ابراہیم میں نے اب آپ کو لوگوں کا امام بنایا ہے۔ اگر امامت کو کمزور مان رہے ہیں نبوت سے تو اللہ کی عدالت جا رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہے کہ نہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ آج ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے امام کا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کا نبی نہیں کہلاتا ہے، انہیں کہیں فلاں مسجد کے امام ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے کہ ہم ہر نبی کے ساتھ نہیں بنائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہ پروردگار یہ اس کے کا کیا مطلب؟ تو ہی نے قرآن میں یہ فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم امام آپ کو میں نے بنایا۔ تو جب امام بنانا تیرا کام ہے تو یہ اس کے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہا کہ تم نے غور نہیں کیا، اگر یہ میرے بنائے ہوئے امام کو مان لیتے مسئلہ کیا ہے؟ توجہ، مسئلہ کیا ہے؟ بے شمال مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اس امام کے ساتھ ہوں گے کہ جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ وہ امام تو ایسا ہوگا، توجہ، وہ امام تو ایسا ہوگا کہ جس کی آنکھیں عین اللہ، جس کا چہرہ وجہ اللہ، جس کے ہاتھ ید اللہ، جس کا نفس نفس اللہ، جس کا دشمن لعنت اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
जी सलामत का और सलावत इरशाद फरमाएं बाबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। दुनिया समझे कि हकीकत दीन क्या है, सही दीन क्या है। आज मसला क्या है कि नमाज पढ़ना कमाल थोड़ी है, सही नमाज पढ़ना ही ये कमाल है। वाह। रोजा रखना कमाल नहीं है, सही वक्त पर रोजा खुल रहा है ये कमाल है। उन्होंने कहा साहब क्या मतलब रोजा, उनका साहब रोजा रखने से क्या मतलब होता है, ये देखिए रोजा खुल कब रहा है। तो उन्होंने कहा साहब ऐसा है कि अरे कमाल तो ये है, आलम इस्लाम के मुसलमानों से आज जाकर पूछिए, 23 जनवरी 2021 है, आज जाकर पूछ लीजिए सबसे पहले कि 23 जनवरी 2021 में सबसे जाकर पूछिए कि अव्वल क्या है। इस्लाम के 73 फिरके हैं, सबसे पूछिए कि अव्वल क्या है। उनका साहब अव्वल नमाज। जब वो कह दे तो उससे कहिए कि लिख कर सुभान अल्लाह। सबसे पूछिए कि सब के सब यही कहेंगे कि अव्वल नमाज। तो उससे पूछिएगा क्या साल के 12 महीने, तो कहेगा हाँ साल के 12 महीने। जब ये कह दे तो ये भी लिखवा दीजिएगा सुभान अल्लाह। मगर मसला क्या है कि साल के 11 महीने अव्वल नमाज। वाह रमजान में क्या होता है, अव्वल नमाज थोड़ी होती है, सुभान अल्लाह, अव्वल रोजा हो जाता है। इसका मतलब लिखा कुछ कर कुछ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। उनका साहब ऐसा है कि रोजा खोलने का वक्त, उनका साहब रोजा खोलने का वक्त क्या कुरान ने बताया है। मैंने कहा जी हाँ रोजा खोलने का भी वक्त है, किस वक्त रोजा खोलना चाहिए। उन्हें कहा जिस वक्त हाफिज जी कहे। मैंने कहा हाफिज जी का नाम, हाफिज जी का दीन थोड़ी है, दीन दीनुल्लाह है, अल्लाह का दीन है भाई। तो किस वक्त रोजा खोलना चाहिए भाई। उन्होंने कहा साहब ऐसा है कि रोजा खोलने के लिए, मैंने कहा जी हाँ रोजा खोलने के लिए देखिए मसला क्या है कि रोजा जो है चूंकि अहले बैत से दीन लिया नहीं तो यही हश्र होगा। जिसका इमामी सही ना हो उसका दीन क्या सही होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। तो यह है कि ऐसे को अपना माना कि जो खुद तो सीधा होने पर कादिर ना हो, उम्मत को क्या सीधा करेगा। वाह वाह क्या बात है। यही कहा था कि जब मैं टेढ़ा हो जाऊं तो तुम मुझे सीधा करना। मतलब मैं सीधा नहीं हो सकता जब तक तुम ना सीधा करो। खुद सीधा होने पर कादिर ना हो तो खुद दूसरे को क्या सीधा करेगा। जब मैं टेढ़ा हो जाऊं तो तुम मुझे सीधा करना। इसका मतलब क्या होता है, अब बहस में बहस होती है, इतना वक्त नहीं है, वरना मसला क्या है कभी मौका मिला तो इस पर बहस भी करेंगे। उनका जब मैं टेढ़ा हो जाऊं तो तुम मुझे सीधा करना। जब मैं टेढ़ा हो जाऊं इसका मकसद क्या होता है कि 24 घंटे उसके साथ एक आदमी रहता होगा, कब टेढ़ा हो जाए। वाह 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 वाह। इसमें देखिए बाद में बात निकलती है, मगर होता क्या है कि जहाँ अहले बैत नहीं वहाँ अक्ल नहीं, जहाँ अहले बैत की बिला नहीं वहाँ पर अक्ल नहीं। आज हमसे ये कहते हैं जनाब कुछ तो देखिए बाखलाक आदमी को होना चाहिए है, आप तो ऐसी बातें कर देते हैं। मैंने कहा आई एम बाकिर मशदी, मेरे लिए कुरान की आयत नहीं है, कुरान का हुक्म नहीं है। एक बेहतरीन अखलाक के दर्जे पर फायद हैं बाकिर मशदी, मगर नबी मुरसल सरदार अंबिया ताजदार अंबिया पैगंबर अकरम के लिए हुक्म कुरान है। हुक्म कुरान क्या है पैगंबर के लिए? अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, इन्नका अला खुलुकुल अज़ीम, हे पैगंबर आप बेहतरीन अखलाक के दर्जे पर फायज हैं। हे मेरे नबी आप बेहतरीन अखलाक के दर्जे पर फायज हैं। पैगंबर के अखलाक की तारीफ किसने की? कुरान। सबसे बड़ी किताब है कुरान और सबसे बड़े नबी भी हैं पैगंबर, तो इसका मतलब सबसे बड़े नबी के अखलाक की तारीफ सबसे बड़ी किताब कुरान में है कि नहीं? ये पैगंबर आप बेहतरीन अखलाक के दर्जे पर फायज हैं।
महफूज फरमाइएगा। सुभान अल्लाह। नबी आप बेहतरीन अखलाक के दर्जे पर फायज हैं। तो जिसके अखलाक की तारीफ कुरान ने की हो, कैसा होगा उसका अखलाक? वाह। अब उससे बढ़कर तो किसी का अखलाक हो नहीं सकता। तो आइए पैगंबर की देहड़ी पर चलते हैं, जिनके अखलाक की तारीफ ना हमारा अखलाक का जिक्र कुरान में है, ना आपके अखलाक का जिक्र कुरान में है। पैगंबर के है कि नहीं? आज हमसे कहते हैं जनाब कुछ तो अखलाक बरतना चाहिए। अरे कमाल है, पैगंबर के अखलाक की तारीफ कुरान कर रहा है। मेरे नबी आप बेहतरीन अखलाक के दर्जे पर फायज हैं, और सबसे बड़ी किताब के अंदर उसका जिक्र है कुरान पाक। इससे बड़ी कोई किताब नहीं कुरान से बड़ी। उन्होंने कहा जी हाँ, इससे बड़ी कोई किताब नहीं। तो जिसके अखलाक की तारीफ कुरान की हो, यानी कुरान ने की हो। अब आइए नबी की जोड़ी पर चलते हैं कि या रसूलुल्लाह ये भी बता दिए कि दुश्मन अली के लिए आपका फैसला क्या है। भाई आप सबसे बड़े, सुभान अल्लाह, सबसे बड़े नबी भी हैं और आपकी अखलाक की तारीफ कुरान ने की है। तो या रसूलुल्लाह इसका भी फैसला आप ही कर दीजिए कि दुश्मन अली जो है वो आपकी निगाह में क्या है। तो आपको मालूम है कहीं दूर नहीं, खंदक चलना होगा। नबी क्या फरमाने, मन ले हाजल कल, कौन है कि जो कुत्ते के मुकाबले में जाए। सुभान अल्लाह। कौन है और मौलाना। इसका मतलब बाखलाक वही होगा कि जो अली के दुश्मन को कम से कम कुत्ता कहे। बाखलाक होने की यही तारीफ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज आलम इस्लाम में देखिए आदमी को इख्तियार है कि जो चाहे करे। हम ये कहते ही नहीं कि आदमी मेरा कहना माने। हम तो ये देखते हैं कि ये तो ऐसे जिद्दी हैं, जब आयत नहीं मान रहे हैं तो रवायत क्या माने। जब आदमी अल्लाह ही का कहना नहीं मान रहा है, असल मसला तो यही है। आज आलम इस्लाम में 73 फिरके हैं। अब उसमें होता क्या है, उनका साहब ऐसी तकरीर की है जिसमें सब के सब जाएं। मैंने कहा कहाँ जाएं? उन्हें कहा ऐसा बयान कीजिए, ऐसी मजलिस पढ़िए, ऐसे फदाइल पढ़िए कि सब के सब जन्नत में जाएं। मैंने कहा क्यों आप पैगंबर के हुक्म की मुखालफत कर रहे हैं? उन्होंने कहा पैगंबर की हदीस क्या है? शिया सुन्नी दोनों किताबों में अंदर मौजूद है। पैगंबर ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। कितने होंगे? 73। और उन 73 फिरकों में मेरी उम्मत में, यही लफ्ज है उम्मत में का मतलब क्या होता है? उम्मत में रामलाल बाबूलाल नहीं आएंगे। उम्मत में का मतलब होता है कलमा गो, नमाजी, हाजी, सहाबी, वहाबी। उम्मत में का मतलब क्या होता है कि कलमा गो है कि नहीं। पैगंबर ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे और उन 73 फिरकों में एक फिरका जन्नत में जाएगा। आज हमसे कहते हैं कि साहब ऐसी तकलीफ कीजिए कि जिसमें सब का सब नाजी हो जाएं, जन्नती हो जाएं। मैंने कहा क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं भाई? पैगंबर की हदीस क्या? पैगंबर ने फरमाया कि मेरी उम्मत में सब के सब पढ़े लिखे हजरात हैं। सुभान अल्लाह। मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे और उन 73 फिरकों में एक फिरका जन्नत में जाएगा। अब नबी ने जो एक फिरका जन्नत में जाने के लिए फरमा दिया है, तो 72 फिरके कहाँ जाएंगे? 72 फिरके जाएंगे जहन्नम में। एक फिरका जाएगा जन्नत में। तो जिस एक फिरके को तवज्जो, जिस एक फिरके को नबी जन्नत में भेज रहे हैं, उस एक फिरके का एक शख्स भी जहन्नम में जा नहीं सकता। जिस एक फिरके को नबी जन्नत में भेज रहे हैं, उसमें का एक भी जहन्नम में जा नहीं सकता। और 72 फिरके जिसको जहन्नम में भेज रहे हैं, उसका एक जन्नत में नहीं आ सकता। सुभान अल्लाह। वाह वाह। एक और सलावत इरशाद फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वाह वाह। इसका एक उधर नहीं जाएगा, उसका एक इधर नहीं आएगा। वाह वाह। बेशक काहे के लिए कोशिश कर रहे हैं भाई? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वाह वाह।
जो नबी ने फरमा दिया वो हर्फ आखिर है, है कि नहीं? जिसके लिए जो कह दिया वो हर्फ आखिर। आगे आदमी को इख्तियार है कि जो चाहे करे, मगर हर सांस पर यही रहना चाहिए ख्याल कि कोई है कि जो देख भी रहा, कोई है कि जो सुन भी रहा। हमने जितनी देर आपके सामने अहले बैत अतार की फजीलत बयान की, ये तो सिर्फ पर्दे गैब वाले वारिस गदीर बेहतर बनाते हैं। क्या आया आपको खुश करने के लिए की है? वाह। या ये है कि वारिस गदीर की खुशनुदी के लिए? कि मसला क्या है? मसला यही रहना चाहिए। आज आपने देखा हो बड़े बड़े डाकखाने, अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, उसमें बड़े बड़े स्टिकर ये लगे होते हैं कि आप कैमरे की नजर में हैं। अगर आदमी ये सोच ले कि आप अल्लाह की नजर में, स्टिकर के भी पैसे बच जाएंगे। पूरा दीन जो है, पूरा का पूरा दीन वो यकीन पर है। अगर यकीन कर लिया कि कोई है कि जो देख भी रहा और कोई है कि जो सुन भी रहा, और ये बात मोहम्मद अलैहिस्सलाम के कोई रास्ता है, कोई कुछ भी कर डाले, चाहे कितनी ही नमाजें पढ़े, कितना ही रोजा रखे, कुछ भी करे, और अगर अहले बैत उससे राजी नहीं तो कुछ नहीं होता। हज़रत ज़हरा उससे राजी नहीं है तो कुछ नहीं होता। जनाब अमीर उससे राजी नहीं है तो कुछ नहीं होता। बेशक बेशक। अकरम उससे राजी नहीं है तो कुछ नहीं होता। बस एक आखिरी बात, उसने बात को तमाम करूं। जब हमने अहले बैत अतार की फजीलत, यानी जिन इमाम का ये जश्न है, सुभान इमाम हसन अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मर्तबा सरकार अमीर अल-मोमिनीन हैं और उनके साथ उनके बड़े फर्जंद हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक राह से गुजर हो रहा है तो क्या देखा कि कब्र दिखाई दी। तो मौला अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया कि बेटा हसन, तुमने इनको पहचाना, ये किसकी कब्र है? कहा बाबा आप फरमाएं। कहा कि ये जनाब सुलेमान की। तो कहा कि बाबा क्या अच्छा होता कि हम इनसे बात करते। तो कहा कि कोई मुश्किल नहीं। सरकार अमीर अल-मोमिनीन ने हुक्म दिया, कब्र शगाफ हुई। क्या देखा कि जनाब सुलेमान जो थे आराम की नींद सो रहे। मौला अमीर अल-मोमिनीन ने अंगूठी निकाली और उनके हाथ में पहनाई, और जैसे ही अंगूठी पहनी उठ कर बैठ गए। फरमाया अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मोमिनीन। क्या बात है, हजरत को सलाम किया। फकीर शाम माविया पर बेशुमार लानत या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम हसन ने गुफ्तगू फरमाना शुरू की। काफ़ी देर हो चुकी तो उसके बाद इमाम हसन ने फरमाया कि बाबा मैं चाहता हूँ कि सुलेमान जो हैं वो असल हालत पर आ जाए। अब देखिए मैं कहाँ लेकर चल रहा हूँ। तो मौला अंगूठी हाथ में उनसे लेकर उसके बाद फिर वो अपनी असल हालत की तरफ पलट गए। तो मसला ये है कि मौला अमीर अल-मोमिनीन हैं इमाम, इमाम हसन हैं इमाम, और सुलेमान पैगंबर जो थे वो थे नबी। ये कौन थे? वो थे नबी। और जनाब ईसा क्या काम करते थे? जनाब ईसा काम ये करते थे कि वो भी मुर्दों को जिंदा करते थे। ईसा कौन थे? उन्हें कहा वो भी नबी थे। कहाँ बैठे? ईसा है नबी, अली है इमाम। इसका मतलब नबूवत वो होती है कि जो उम्मत को जिंदा करे, इमामत वो होती है कि जो नबूवत को जिंदा करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फरमाए बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चलते हैं और चलने के बाद ये महफिल सरकार हजरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत बाबरकत में उनकी खिदमत में पेश करते हैं और ये दुआ करते हैं कि मौला आप जितने लोग भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हो, इन तमाम लोगों को हर अर्ज़ी व समाधी बनाओ। सरकार सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम के सदक़े में जिन लोगों ने इस महफिल का इनेकाद किया, और मेरे मालिक
ان تمام لوگوں کو ہر عرضی و سماجی بلاؤں سے آمین میرے معبود جتنے لوگ بھی یہاں پر تشریف فرما ہوں ہم سمیت ان سب لوگوں کو پولیس کورٹ کچہری اسپتال تھانہ ان تمام چیزوں سے محفوظ پروردگار جتنے لوگ بھی یہاں پر ہم سمیت ان تمام لوگوں کو مظلوم کربلا کی زیارت کا شرف آمین کو واسطہ ہے تیرے حق و تیری عزت کا کہ آج کی رات داعش والوں کے لیے آخری رات آمین سعودی عرب کی حکومت کو نیست ناب آمین اور جلد سے جلد وارث غدیر حضرت امام زمانہ کا آمین اللہ